Okay, so in yesterday's class, we see some introductions regarding Power BI, some data warehouse concepts also we see. In Power BI, we have options to do the ETL, extract, transformations and loading options also there. In other tools might be that options is not available. That is the advantage of Power BI. What is ETL? Extract, transformations, loading, that we see in yesterday's lectures. In data warehouse, we have the different BI layers, right? Data warehouse layer, data source layers and reporting layer. So what data engineers do in ETL, in data warehouse role, in that particular layer, they extract the data, do some transformations and store that data in the data warehouse. So we also have this some kind of a capability, not fully but kind of a capability in Power BI tool itself. We can transform the data whatever we want. Let's say in tables, in original tables we have 10 columns, but you wanted one more columns because you wanted this column in a analysis. So for example, in data, in actual data there is a two columns, first name and last name, but for the analysis purpose you wanted only one columns which contains first and last name both. So you create a one column in a Power BI which hold this full name, and you use this full name in for the analysis purpose. So in actual data, in data source, there is no full name column, but in your Power BI tool or in Power BI file, there is a full name column. So that kind of a transformations, creating a columns, creating a calculations, calculated columns in the sense, let's say I'm having some sales uh, price and sales quantity, right? Let's say product price and product quantity I'm having, and I wanted to calculate the sales. So what I need to do is I need to multiply this quantity to the price, and then I am getting the sales for that particular product. So in original tables there is no sales columns or no calculation is there, but in Power BI you do these calculations and use for the analysis. So that kind of transformations, and there is more options also there for the transformations we going to see in Power BI for the today's lecture. Yesterday in Power BI introduction slides number 9, we see the different components of Power BI, right? So the first component is the Power Query. So in Power BI desktop applications, there is another supporting tool called Power Query, which can you use for the this kind of a transformations. You do the transformations and then load data into the Power BI desktop applications, right? So where we find these desktop applications in Microsoft Store. Let's say I'm opening the store, Microsoft Store. I'm searching for the Power BI. Your screen is not shared. Yeah, sorry. Just sharing. Is it visible now? Yes. Yes. So I open this Microsoft Store in my system and I search for the Power BI. You can see this Power BI desktop application is there. It is already installed in my system. That's why it is showing open. If it is not installed, simply it is saying get it like this. You see this Power BI report builder, like this option is you getting when you don't have this Power BI desktop applications. Simply you click on the get, it will be installed on your system. If somebody faces the issue, then he or she can able to download this exe files by Google itself. So you simply search in Google's Power BI desktop applications, download, then go it gives you the links for this downloading this .exe files. But this can be work for everyone, and mostly we in actual practice we install via store. Why? Because when you install these applications via store, it automatically updates. Power BI desktop applications having monthly updates, a new feature coming. So that's why you need to stay update
according to the version. Sometimes interviewer may ask you what versions you use in Power BI, right? So might be you are using, let's say this is the July, right? So might be you are using June versions, and in July version there is some updates in the some kind of options in Power BI desktop applications. So they just checking that how you are up to date with the application. You you follow the standard process or not. So again, keep in mind how to check this versions and all these things. When we open this Power BI desktop application, we will going to see. So this is the way you can download this Power BI desktop applications. When it is downloaded, you simply got an icon on the screen. If it is not, you simply search in your system that I need to open this Power BI desktop applications, Power BI desktop. I'll just click on this Power BI desktop application. Okay, kind of a window is opening like Excel or PowerPoint presentations you open, the same kind of a UI you going to see, right? आपको blank report open करना है या existing file open करनी है, kind of a. So I'm taking this blank report. Let's say I'm having some history. That history also recent opening will be showcased over here. So I'm taking the blank report. Once the blank report is open, this is the UI for the Power BI desktop applications. Right, this UI is similar to your Excel also having some file, home, insert options are there, but kind of a different options we can able to see over here in Power BI desktop applications, right? So if we see this white screen, right, white screen, इसको हम बोलेंगे canvas. ठीक है, इसको canvas बोलेंगे. In that canvas you are going to develop a report, right? आप जो भी visualizations के आपके पास जो भी ये रहेंगे ग्राफ्स वगैरह, यू कैन सी दिस इन राइट हैंड साइड. यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, कौन सा चार्ट आपको सेलेक्ट करना है, राइट? स्टैक बार्ट एंड ऑल दिस थिंग्स वी गोइंग टू सी द चार्ट्स, इंपॉर्टेंट चार्ट्स. But this is the options, you choose the chart and accordingly you put the values in that particular chart and it will be appear in the system or it will be appear in the canvas. Okay, so there is some options over here. This is the latest version, so might be there is some options in the right hand side. You can see this is the first is the data, the second one is the build, format, selections, and so on. The customization is there. But what is it for? When you load the data in Power BI desktop applications, you're going to see the table name and column names in that section, data sections. Yeah, we are going to see this how it looks like, but this is just an overview how these tools look like, right? For these options,
What is it for? This is the preview feature. If Power BI introduce some preview features, those options can be able to showcase over here. So this particular options under preview only, you can use it, but if it can be changed by the Microsoft because it is under preview. So those options can able to see in this particular sections. We use this only. Okay, so in the left hand sides you also have some options. First is the report view. In this report view, this canvas is able to showcase you the reports. Whatever you develop, you can able to see this in a report view. There is one more is table view. When you click on the table view, whatever tables or data you load in the Power BI desktop application, that particular table name along with its column you can able to see, and the itself data itself. आप यहाँ पे आपको टेबल का नाम दिखेगा, उसके अलॉन्ग साइड्स उसमें कितने कॉलम्स है, एंड अगर टेबल को आपने सेलेक्ट किया तो उस टेबल में क्या डेटा होल्ड किया हुआ है वो डेटा भी आपको यहाँ पे दिखेगा. दिस इज इन द टेबल व्यू इंफॉर्मेशन. देन अनदर वन इज द मॉडल व्यू. दिस इज द इम्पोर्टेंट वन. वट एवर टेबल्स यू लोड इन पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वो टेबल्स के नाम आपको यहाँ पे दिखेंगे. अगेन there is some relationship between the tables, right? Let's say I'm having some employee table and I'm having sales table. तो employee tables के अंदर की employee की I need to connect with this sales table, so I need to showcase कि हर एक employee का sale कितना है. Might be the employee is the sales person, तो हर एक बंदे का sales कितना है. ये relationships क्यों important होती है? Because generally we have the concept in data analysis, fact tables and the dimension tables. ये concept होता है. when we going to load the data, then we will see what is the fact tables and what is the dimension table. But in order to there is a relationships between the fact tables and the dimension tables, and this particular models or this particular chart is coming up over here, which showcasing the relationship between those tables. kind of हम सिंपली जैसे एरोज पुट करते हैं ना, कि एक टेबल से दूसरे टेबल तक हमने एक एरो पुट किया, देन अगेन putting arrow for the second table to third table. So kind of a chart is displaying over here, which is nothing but a model. So model, we can say this is the heart of your report, because whatever the directions, whatever the relationships you mention over here or create over here, based upon that relationships your data is showcasing this report. Okay, so whatever the calculations you created, whatever the results your charts are showing, those are based on this particular model only. So model is very important. Then those are the new features, DAX queries and TMWL, TMDL. We are not going to see much on this, but these are three are the most important one, commonly used. Okay, so in next one we have some this filter pane is also over here. This is for if you wanted to apply some filtration on your visuals pages in the sense, this is the page 1. I can multiply this pages by as per need. मैं इस पेज पे कुछ विजुअल्स, सेकेंड पेज पे कुछ विजुअल्स ऐसे रिपोर्ट बिल्ड कर सकता हूँ और सेव कर सकता हूँ. सो TMDL is a new thing right now. It is under preview only. Kind of a code editor है ये for the coding purpose and all these things. हाँ, yes. So when you open this kind of a documentations, if it is under preview, you can able to see this work with TMDL view in Power BI desktop. It is under preview only.
Yeah, this is a tabular model definitions language, TMDL. Kind of a scripting के लिए है ये. Okay. जरूरी नहीं है. ठीक है. Then we have this options we call normally called is main ribbon. Okay, main menu ribbon. उसमें कुछ options रहेंगे जैसे first example this is the get data options. Get data options, when I click on this get data options, I'm seeing the common data sources that I'm able to connect using Power BI desktop applications. And if I click on this more button, whatever the connectors available in Power BI desktop applications in order to connect different data sources, those are available in the form of list. Those are also available in the form of grouping. Like if I wanted to connect some files like Excel file or CSV files, XML files, then I can choose the connectors and accordingly select the file. Connector choosing is very important because based upon that only you can connect to that particular source. If your file is in the CSV format and you select the Excel connectors, the CSV files is not able to see in your search box, or this file is not able to visible. So in order to connect to particular file, the data type of that particular file or file type is very important. ठीक है. If you wanted to connect some databases like SQL databases or Oracle databases, so accordingly you choose the database connector and connect to that particular database. Again, connecting to the database, it might occur some username and password for this database because database are secured one, right? तो जैसे कनेक्टर चूज करते हो आप तो अनदर पॉपअप विंडो कम होता है कि आप जिस डेटाबेस को आपको कनेक्ट करना है उसका सर्वर का नाम दीजिए, यूज़र नेम दीजिए या डेटाबेस का पासवर्ड दे दीजिए, समथिंग वट एवर द वी डेवलप सिक्योरिटी ऑन दैट डेटाबेस, अकॉर्डिंगली पॉपअप्स अपीयर ऑन द स्क्रीन. ओके. सो ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको कहाँ से मिलती है? ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, जिस क्लाइंट के लिए आप रिपोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं, those organizations provide you this kind of a details to you कि हमारी डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए वट एवर द क्रेडेंशियल्स आर देयर, ये क्रेडेंशियल आपको पहले दिए जाते हैं. ओके. So I'm having one file, adventure work file. Just yesterday I also share it on a WhatsApp, right? So I'll just download it and keep it in the one folder in my desktop folder, and I just extracted it. When I open it, I'm having some CSV files. The data type for these files are not the Excel one, those are the CSVs. Okay. How can I check this data type? I simply right click and see the properties. Yeah. Where it is. Yeah, this one. So you see this is this .csv. Okay. So in order to connect with those files, I need to select the CSV connector in Power BI desktop application. So let's start with this. How can we fetch the data in Power BI desktop application? Yeah. So we going to click on the get data and select the connector. But first of all, you need to understand this Power BI desktop application is the free tool. आप इसको आपने आपकी सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है. यू डिडंट साइन इन, राइट? आपने साइन इन वगैरह कुछ किया नहीं. यू सी दिस ऑप्शन साइन इन. सो दिस इज कम अंडर पिक्चर व्हेन यू हैविंग द लाइसेंस. पावर बीआई के अंदर जितने लाइसेंस आते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर लाइसेंस आपको असाइन किया हुआ है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आप जब कंपनीज ज्वाइन करते हो तो दे प्रोवाइड यू सम ईमेल एड्रेस, राइट? सो उस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस को लाइसेंस असाइन किया जाता है कि लेट्स से पावर बीआई प्रो लाइसेंस असाइन किया हुआ है आपको. सो दे प्रोवाइडिंग द सिंगल साइन ऑन ऑप्शन. सिंगल साइन ऑन मतलब आपकी जो कंपनी के क्रेडेंशियल्स होते हैं वही क्रेडेंशियल्स आपको यूज़ करके आप साइन इन करते हो लाइसेंस को. लाइसेंस काइंड ऑफ क्रेडेंशियल्स वही रहते हैं. आप कंपनी जब ज्वाइन करते हो तो आपको एक ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड दिया जाता है, राइट?
सो वही क्रेडेंशियल्स को बस वो लाइसेंस असाइन करते हैं उस पर्टिकुलर यूज़र को कि इस यूज़र के लिए हम पावर BI प्रो लाइसेंस असाइन कर रहे हैं. So using the same credentials, you're going to sign in. Now for the development purpose, we don't require any license. When we are going to study the Power BI services part, then we will able to get a trial license and then we log in with this particular license. Okay. Right now till the developments, we don't require any kind of a license. Right. So I'm in a Power BI desktop applications. In order to fetch the data from the source कहाँ पे है? मेरे ही सिस्टम में एक फोल्डर पे मैंने कुछ फाइल्स रखी हुई है, मुझे उन फाइल्स को कनेक्ट करना है, राइट? सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस गेट डेटा ऑप्शंस एंड ओवर हियर some common data sources are there, text CSV also there. Let me click on the more. If the connector is not visible in the common data sources, you can click on the more and choose the connector. You can simply search also. Let's say I'm searching for the CSV. So CSV is sorting out based upon my searching criteria. I'm just selecting this text CSV. I'll say connect. Okay. So my file is in the desktop. Okay. Those are the files are visible to me when I choose the correct connector. If I choose the wrong connector, let's say I'm selecting the Excel workbook and again goes to the same folder. See, this data is not there. Data is there, but because of this connector selections, it is not, there is no Excel files over here. That's why it is not showing. Understood? So हमें connector choose करते time थोड़ा ध्यान रखना है कि which connector we are choosing. So I'm simply selecting the text CSV. Let me grab the data. I'll just click on this calendar first my table and I'll say open. Let me just open this calendar also in my machine. We are actually going to see the what data is holding, right? When I open this file, I'm see यहाँ पे एक ही कॉलम है, डेट का एक कॉलम यहाँ पे मेंशन है, राइट? बट मुझे यहाँ पे कुछ और कॉलम्स चाहिए, जैसे मुझे मंथ का नाम चाहिए, मंथ का नंबर एक चाहिए, मुझे ईयर का एक कॉलम चाहिए, देन मुझे मंथ का नेम, वीक नेम या वीक नंबर, क्वार्टर का नाम, क्वार्टर का नंबर. All these informations I also required because I wanted those columns for my analysis, right? So let's say मुझे कोई एक चार्ट बनाना है जिसमें मुझे ईयर वाइज सेल्स को दिखाना है कि 2024 में कितना सेल था, 22 में कितना सेल था, 3 में. सो आई रिक्वायर्ड कॉलम फॉर दैट पर्टिकुलर एंटिटी. मुझे मैं डेट के कॉलम के बेसिस पे वो एनालिसिस नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट हैव द सेपरेट कॉलम कॉल्ड ईयर एंड उसमें ईयर की वैल्यूज़ नहीं है, राइट? Whatever the analysis we do in Power BI desktop applications for the reporting tool or any kind of a reporting tool, not only the Power BI, any other also reporting tool, you require a column for the analysis. क्योंकि जब हम कोई भी ग्राफ को बनाते हैं, राइट? हमने जब हम मैथ्स पढ़े 7th 8th 9th 10th में हम ग्राफ्स बनाते थे, राइट? सो ग्राफ्स में हम क्या पुट करते थे? वी हैव सम एक्स एक्सिस एंड वी आल्सो हैव सम वाई एक्सिस. सो वाई एक्सिस पे हम मोस्टली क्या पुट करते थे? वट एवर द वैल्यूज वी हैविंग, राइट? एंड एक्स एक्सिस पे क्या पुट करते थे? वट एवर द एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स वी हैविंग. लेट्स से वी हैविंग सम स्टेट के नाम है हमारे पास या कंट्रीज के नाम है. सो दैट इंफॉर्मेशन वी पुटिंग इन द एक्स एक्सिस एंड वट एवर द वैल्यूज हो, पॉपुलेशंस हो या sales or whatever the values for that particular attributes, we are going to put in the y axis. That's what the x and y axis we are using prior on. The same concept is over here, right? So to putting this attributes in the x axis, we require actual attributes, right? So we required some year columns and more columns over here in this particular table. Right now it is having only one column.
So in order to add those columns, we use Power Query. Okay, so if I close this, let me close this, and I'm going to the Power BI desktop applications. When I select this table from my folder, I'm having two options over here. First is the load, and the second one is the transform data. When I click on the load options, what it is doing, it is directly loading this data into my Power BI desktop application. Correct? So it is not doing any changes. It is simply loading this data into my Power BI desktop applications. In short, it is creating a copy of that data in my Power BI desktop application. If I goes to the table view now, you see this table view now, you can able to see this table name over here, adventure work calendar, right? And the whatever the column having the data, column name and the data associated with it is showing over here. Correct? If I expand it, it's showing me what columns it's holding. This is my table name and this is the column name. Currently this table is having only one column, date. Okay, now if I wanted to add some columns, there are two ways. In Power BI desktop applications, by using some DAX queries, right? DAX is kind of a data analytical expressions, that is kind of a different language over here. In not a language, we can see it is called as a language, but it is kind of a some kind of a expressions like formulas. जैसे हम एक्सेल में formulas put करते हैं ना, वैसे formulas को use करके आप यहाँ पे columns create कर सकते हो, calculated columns जिसको हम बोलते हैं. The second one way is you can create those columns in Power Query. Okay, so firstly we're going to see the Power Query, and then when we are going to learn the DAX, then at the time we also created some calculated columns and calculations using the DAX in Power BI desktop application. Why we required those two? Because sometimes you don't have the access for the data in real life. Means now I'm able to see my data because it is available in my machine, right? And also I'm able to see this data in table view sections because I created a copy of the data in my Power BI desktop application. Because I connect with this data using import mode. There are different types of modes available in Power BI desktop application. When you connecting to the data and you created a copy of a data in your Power BI desktop application, then it is an import mode. But there is another mode we call is a direct mode or live mode. उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ मेटा डेटा को कनेक्ट करते हो, not actual data. Because when I connecting this Excel file, it is having some only 912 distinct values or some limited kind of a data, small data. बट ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपको स्मॉल डेटा ही मिले. अगर मेरे टेबल्स में बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो, तो वैसे डेटा को अगर मैंने इंपोर्ट मोड पे लिया, देन पावर बीआई की फाइल की साइज बढ़ेगी बिकॉज यू क्रिएटिंग और यू आर स्टोरिंग दिस डेटा ओवर हियर. रिफ्रेशिंग या slowness of your report, that problems occurring. So that's why based upon your data source, data size, you choose which options you're going to select. It is widely import mode or a direct mode. 60% or 70% import modes are used because imports mode having hold more we can say reliability or control on the data, because you actually having the copy of a data, you can able to see the data and you do the transformations based upon that particular data. So you having a more control on the data in Power BI in import mode in Power BI desktop application. Also all the features, all the formulas we can see when you do some calculations, you created some columns and all these things. So in import mode you don't have any problems with this particular formulas. But when you use the direct mode, there is some limitations on the formulas, like time intelligence functions are not working properly, multiple formulas are not working because of this direct mode. So
whenever you use the direct node, you need to keep in mind that those functions or those formulas are not going to work properly. So in the best practice, when we follow the best practice, we always choose the import mode, right? And then by using the import mode, we do the calculations or creating the columns, right? So when I wanted to open this power query, राइट, पावर क्यूरी ओपन करने के दो ऑप्शंस है। जब मैं डेटा को कनेक्ट किया, जो पॉपअप मेरे सामने आया, तो मैं हैविंग टू ऑप्शंस, लोड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, करेक्ट। आई क्लिक ऑन द लोड, तो डेटा डायरेक्टली पावर बाई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में लोड हुआ। व्हेन आई if I'm not able to, when I'm not clicking on the load and clicking on the transform data options, तब क्या होता, तो पावर क्यूरी का विंडो ओपन होता। लेट मी डिलीट दिस टेबल, just deleting it, and now I'm again collecting to that same table. This time I'm not clicking on this load options, I'm clicking on transform data options. ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्यों क्लिक करना है, हमें यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स चाहिए। वी वांटेड टू डू सम ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन दिस टेबल्स एंड आई वांट टू ऐड कॉलम्स ओवर हियर इन द टेबल, so that's why we going to click on this transform data. I wanted to transform this data, so I click on the transform data this time. Now what is happening, there is one window is opening, power query editor. We also having this query editor in excel में भी ये query editor होता है, power query editor. I don't know कि आप लोगों ने कभी ओपन किया है कि नहीं इसको, बट एक्सेल में भी excel also having this power query editor. Okay, सो पावर क्यूरी एडिटर में जब मैंने इसको ओपन किया, इस पर्टिकुलर फाइल को, देन आई एम आल्सो हैविंग सम ऑप्शंस। दिस रिबन में मेरे पास कुछ ऑप्शंस है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन पर्पज। मेनली आई एम हैविंग दिस थ्री ऑप्शंस मेन। दिस इज द होम, देन ट्रांसफॉर्म एंड देन ऐड कॉलम। बेस्ड अपॉन माय रिक्वायरमेंट आई एम चूजिंग द ऑप्शंस फ्रॉम दिस कैटेगरी। ओके, सो फर्स्ट इज, this is my column, date column. Power BI identifies automatically data type for this particular column. Power BI sharp है, तो वो क्या करता है, whatever data you load in the Power BI desktop or in the Power Query editor, हर एक कॉलम्स का डेटा टाइप वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है बेस्ड अपॉन whatever the values stored inside the data. Might be the data, this date column is containing the date values. So that's why you able to see this kind of a calendar symbol is coming over here, right, in beside this date name. So if I click on this calendar symbol, those are the data types available over here along with the date. So sometimes what is happening, mistakenly or not mistakenly, we can say Power BI unable to detect correct data type. So एज अ डेटा एनालिस्ट हमारा जॉब ये है कि हम कॉलम्स के डेटा टाइप पहले चेक करें। हर एक कॉलम्स का डेटा टाइप हमें मैन्युअली चेक करना चाहिए कि पावर बीआई ने जो डेटा टाइप असाइन करके दिया है, दिस इज करेक्ट और नॉट। समटाइम्स पावर बीआई द पर्टिकुलर कॉलम्स को स्ट्रिंग वैल्यू या जिसको हम बोलेंगे कि टेक्स्ट डेटा टाइप प्रोवाइड करता है, बट it is not actually a text, it is like something called a whole number. तो वो डेटा मिसमैच होगा, बिकॉज ऑफ दिस डेटा मिसमैच क्या होगा, जब आप एनालिसिस करोगे एक्चुअल पावर बाई डेस्कटॉप में, तब आपको रिपोर्टिंग जनरेशंस में, चार्ट्स में प्रॉब्लम देगा, करेक्ट। सो डेटा टाइप इज इम्पॉर्टेंट है। हमें whenever we load the data in Power Query Editor or Power BI desktop application, before loading this data हमें चेक करना है कि डेटा टाइप जो है हर एक कॉलम्स का प्रॉपरली असाइन है या नहीं, ठीक है। सो इन माय केस इट इज ऑलरेडी सेइंग दैट दिस इज माय डेट कॉलम एंड all the values related or all the values available in these columns are the date values. अभी आपके केस में इसमें प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज आपका सिस्टम का जो लैंग्वेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया होगा सेलेक्ट, एंड वॉट एवर द डेटा आई एम यूजिंग, दिस इज लाइक इट इज़ यूएस और यूके बेस।
सो जो डेट का फॉर्मेट है ना, हम इंडिया में डेट का फॉर्मेट कैसे यूज़ करते हैं, हम पहले डेट, देन मंथ एंड देन ईयर, राइट? बट इन वेस्टर्न कंट्रीज व्हाट दे प्रेफर इज, दे पहले मंथ लेते हैं, देन डेट लेते हैं, देन ईयर लेते हैं, राइट? सो बेस्ड अपॉन द रीजन्स फॉर्मेट्स आर चेंजिंग. सो आपका फर्स्ट टास्क क्या रहेगा, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, आप पहले ये चेक करोगे कि दिस ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है उनमें की जो डेट्स की वैल्यूज़ है ये कौन से फॉर्मेट में है. इट माइट बी अ डी डी एम एम वाई वाई, or it might be MMDDYY. So based upon the region selections, you choose the region first in the file. Region कहाँ पे choose होता है? Let me show you. When I open this file, we have this options and setting. In the option section, okay, in the option sections, I'm going to this regional setting. Now this is English United States. That's why this problem is not occurring. Let me make it as a English India, because whenever first time you do in Power BI desktop, it is English India. English. ठीक है, यहाँ पे कुछ मुझे एरर दिया है, वी गोइंग टू सी द व्हाट इज द एरर. नाउ दिस डेटा इज लोडेड इन पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन. यू सी दिस डेटा सिम्स सम वेयर वैल्यूज, इसमें कुछ वैल्यूज नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, करेक्ट? सम वैल्यूज आर देयर बट ब्लैंक आल्सो देयर. इशू क्या है, लेट अस सी. अभी मैं पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हूँ. आई I wanted to again go to the Power Query editor. So we have those options. I go to the home, and in the transform data options we have this transform data. If I drop down this, the two options are coming, transform data and data source setting. हम जाएंगे transform data के ऊपर, because when we click on the transform data, we open the Power Query editor, right? So when I click on the transform data, again Power Query editor का window open हो जाएगा. It is not giving me some errors, but actually it gives me, yeah, it is giving now. So kind of a error you getting when you firstly open with this कैलेंडर टेबल ना, आपको ऐसा एक एरर आएगा. तो उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाके ऑप्शन सेटिंग में जाके लैंग्वेज कौन सी करनी पड़ेगी, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स. एरर क्या दे रहा है, यू सी दिस डेटा टाइप 12/1/2015. तो यहाँ तक उसको अंडरस्टैंड आता है कि माइट बी दिस 12 इज मंथ, दिस वन इज डे, और दिस वन इज 2015. सो अगर हमने इंग्लिश इंडिया किया हुआ है तो यहाँ पे वो इसको डेट कंसिडर कर रहा है 12 को, इस वन को वो मंथ कंसिडर कर रहा है, और 2015 को क्या कर रहा है, ईयर कंसिडर कर रहा है. if I click on this error, you see this date 1/13/2015. तो यहाँ पे वो कंफ्यूज हो रहा है कि 13 तो मंथ नहीं हो सकता. दैट्स वाई इट गिव्स यू एरर फॉर दिस पर्टिकुलर रो. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है ये एरर क्यों आ रहा है ये, बिकॉज ऑफ यूर रीजनल सेटिंग. तो रीजनल सेटिंग को चेंज कैसे करते हैं हम, वी गो टू दिस फाइल, go to the options and settings, options, we go to this current file sections and regional setting. Now I change this setting English India to English United States. English United States. Let's say okay.
now see the error is gone. रीजनल सेटिंग चेंज करने के बाद भी समटाइम्स यू सी दिस एरर आल्सो इटसेल्फ, आपको एरर फिर भी दिखाई देगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट क्लिक ऑन दिस सोर्स अगेन. ये जो स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे, इन पे क्लिक कीजिए. अदरवाइज यहाँ पे एक रिफ्रेश प्रीव्यू का बटन है, उसको रिफ्रेश ऑल या रिफ्रेश प्रीव्यू कर लो ताकि ये डेटा रिफ्रेश हो जाए. एंड क्लिक ऑन दिस सम स्टेप्स अगेन एंड इन द लास्ट स्टेप, तो वो एरर निकल जाएगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. तो यहाँ पे अभी मैंने डेटा लोड किया, सम ट्रांसफॉर्मेशंस. यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन देखो क्या हुआ है, यहाँ पे कॉलम 1 करके आया है, बट एक्चुअली मेरा ये जो कॉलम है इसका नाम क्या है, डेट. तो यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, इनिशियली व्हेन आई लोड द डेटा इट कैप्चर द डेटा टाइप प्रॉपरली. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ दिस डेट रो, वो क्या समझ रहा है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में टेक्स्ट डेटा टाइप है, बिकॉज यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो क्या है, टेक्स्ट है. बट हमें पता है कि इस कॉलम में डेट्स ही है, इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है. तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस वी वांटेड टू डू इज, ये जो फर्स्ट रो है इसको मुझे एज अ हेडर करना पड़ेगा. ये कॉलम 1 मेरा हेडर नहीं है, मेरा हेडर है डेट. सो इन ऑर्डर टू डू द ट्रांसफॉर्मेशंस, फर्स्ट इज सेलेक्ट दिस कॉलम, वट एवर द ट्रांसफॉर्मेशंस यू वांटेड टू डू. आप कॉलम को चूज करते हो. And then we have these options in the home sections itself. I'm having this option, you see this transform, use first row as a header. इसको अगर मैंने ड्रॉप डाउन किया तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, यूज हेडर एज अ फर्स्ट रो. हमारे केस में क्या सिनारियो है, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर. सो मैं यहाँ पे इसको चूज करूंगा, यूज, अभी देखो मैंने जब यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर चूज किया तो मुझे एक इंसर्ट स्टेप का ऑप्शन आया. क्यों आया, बिकॉज इन द अप्लाइड स्टेप्स के सेक्शन में मेरा स्टेप कौन सा सेलेक्टेड है, फर्स्ट स्टेप सेलेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग. करेक्ट. सो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका जो सोर्स है या आपका जो अप्लाइड स्टेप्स है, ये अप्लाइड स्टेप्स क्या होता है, whatever the transformations you did in the table, वो steps यहाँ पे कैप्चर होते हैं. आपने कोई कॉलम ऐड किया, जैसे मैं ये ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहा हूँ कि फर्स्ट रो को हेडर कर रहा हूँ, तो वो ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे कैप्चर होगा. इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ एंड इफ आई सेलेक्ट द लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में देखो यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है ऑलरेडी. लेट मी डिलीट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, डिलीट आप ऐसे कर सकते हो. ओके, एंड लेट्स स्टार्ट द ट्रांसफॉर्मेशंस अगेन. मेरा अप्लाइड स्टेप्स फर्स्ट स्टेप सेलेक्टेड है, मैंने कॉलम को सेलेक्ट किया, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर को क्लिक किया. ये दो स्टेप्स ऐड हुई, प्रमोटेड हेडर्स एंड चेंज टाइप. ये क्या इन्होंने क्या किया, फर्स्ट रो को, दिस प्रमोटेड हेडर्स का स्टेप था, इसने क्या किया, फर्स्ट रो को हेडर में कन्वर्ट कर दिया. एंड देन पावर बीआई ने अपने से उसका डेटा टाइप कैप्चर कर लिया कि दिस इज डेट. अगर कैप्चर नहीं करता तो आप चेंज कर लो यहाँ से कि दिस इज अ डेट. राइट, ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया. अगेन बेस अपॉन योर कॉलम सिलेक्शंस, ये जो ऑप्शंस है ना ऊपर के, ये ऑप्शंस आपको विजिबिलिटी दिखेगी इसकी. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं सोर्स पे जा रहा हूँ, अभी इसका डेटा टाइप क्या दिखा रहा है, टेक्स्ट. इफ आई सेलेक्ट दिस कॉलम एंड वांटेड टू डू सम ट्रांसफॉर्मेशंस, you see base this is the text one, so only the text के जो ट्रांसफॉर्मेशंस है ना वो विजिबल रहेंगे. नंबर के ट्रांसफॉर्मेशंस, डेट के ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं दिखेंगे मुझे, ये कर नहीं पाऊंगा मैं, बिकॉज दिस डेटा टाइप इज टेक्स्ट. बट व्हेन आई चेंज दिस डेटा टाइप टू द डेट, now you can able to see this data type transformations, you can able to do the transformation based upon the date. अभी जो टेक्स्ट के रहेंगे वो टेक्स्ट के यहाँ पे नहीं कर सकता, ये वो ग्रेड आउट हो जाएंगे. ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया है. इसमें किसी को कुछ डाउट है दिस डेट के ट्रांसफॉर्मेशंस में, ऑनलाइन स्टूडेंट?
ऑनलाइन स्टूडेंट? No, sir. Clear. सबको समझ में आया कि हाउ वी डिड दिस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दिस Yes, पर्टिकुलर sir. कॉलम डेट? तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे करना है, मुझे इस पर्टिकुलर वैल्यू जो है, जैसे कि 1 जनवरी 2015, इसमें से मुझे चाहिए मंथ का नंबर। मंथ का नंबर मतलब क्या? दिस वन, 1 2 3 4, राइट? तो मंथ का नंबर मुझे चाहिए। हाउ कैन वी डू दिस? अगेन यहाँ पे दो ऑप्शंस रहेंगे मेरे पास। अभी मुझे ट्रांसफॉर्मेशंस अगर एग्जिस्टिंग कॉलम के ऊपर ही करना है, मतलब जैसे मेरा ये सोर्स का कॉलम था, हमने अभी जो ट्रांसफॉर्मेशंस किया, हमने इसी कॉलम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस किया। हमने इसके लिए कोई नया कॉलम नहीं बनाया, हमने क्या किया, इसी कॉलम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया। सो दोज ट्रांसफॉर्मेशंस आर कम अंडर दिस होम एंड ट्रांसफॉर्म। ये होम एंड ट्रांसफॉर्म के जो ऑप्शंस रहेंगे, वो ऑप्शंस किस लिए है? आपको एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं। बट इफ यू रिक्वायर्ड मोर कॉलम, आपको कॉलम ऐड करना है यूजिंग द एग्जिस्टिंग कॉलम, देन यू गो फॉर दिस ऐड कॉलम सेक्शन, राइट? सो मैं लास्ट स्टेप पे जा रहा हूं अगेन, and I select this add column. Now I can add the column using existing column. अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस कॉलम को मुझे यूज करना है टू क्रिएट अनदर कॉलम। हमें कॉलम कौन सा ऐड करना है? मंथ नंबर का। सो मैं डेट का जो कॉलम है उसको सेलेक्ट करूंगा, एंड देन गोज टू दिस ऐड कॉलम सेक्शंस एंड फॉलो दिस फ्रॉम डेट एंड टाइम। ये जो सेक्शन है मेरा, यहाँ पे एक कैलेंडर का सिंबल दिखेगा आपको। इफ यू ड्रॉप डाउन दिस, कुछ ऑप्शन दिखेंगे। इफ आई गो टू दिस मंथ सेक्शन, यू सी यहाँ पे ऑप्शन है मंथ, स्टार्ट ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, डेज इन मंथ, नेम ऑफ अ मंथ। हमें क्या चाहिए? मंथ का नंबर चाहिए। तो फर्स्टली वी सी वी वांट दिस मंथ। यू सी दिस मंथ का नंबर आपको मिला यहाँ पे, राइट? बिकॉज हमारा जो डेटा टाइप है वो कैसा है? मंथ, डेट एंड ईयर है। तो फर्स्ट जो रहेगा ये हमारा मंथ है, 111111 समथिंग, देन दिस इज फॉर 2, राइट? मुझे अगर यू सी दिस, वट एवर द ट्रांसफॉर्मेशंस यू आर डूइंग, इट इज कैप्चरिंग, इट इज सेइंग इंसर्टेड मंथ, राइट? मुझे इसका मंथ का जो नाम है ना, ये नाम मुझे मंथ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मंथ नंबर, राइट? तो मैं इसको रीनेम कैसे कर सकता हूँ? मैं इस पर डबल क्लिक कर सकता हूँ, इसको मैं बोलूँगा कि मंथ नंबर, हिट एंटर। Whenever I do these transformations, again it is capturing in this applied set, rename columns. Also it is, if you click on this stage, ये फॉर्मूला बार दिख रहा है यहाँ पे, इस फॉर्मूला बार में वो ट्रांसफॉर्मेशंस कैप्चर हो रहा है। वट एवर यू सी इन दिस सेक्शंस, इसको बोलेंगे हम एम कोड। ये एम कोडिंग है। कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू का कि पावर क्यूरी एडिटर में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? सो पावर क्यूरी एडिटर में एम कोडिंग यूज की जाती है। एम कोडिंग, एम फॉर मनी, एम कोडिंग या एम लैंग्वेज। इसको अगर मैंने थोड़ा ओपन किया तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बार, यहाँ पे वट एवर स्क्रिप्टिंग यू सी, मैं सोर्स पे जा रहा हूँ, तो ये सोर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसने स्टोर कर ली कि आपने कहाँ से ये पर्टिकुलर फाइल ली हुई है। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा है इस एम कोड को बेस अपॉन यूर ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शंस, ठीक है? इसके लिए एम कोडिंग का स्क्रिप्टिंग भी होता है। कुछ कुछ लोग एम कोडिंग में स्क्रिप्टिंग भी करते हैं, वट एवर ऑप्शंस आप ये चूज कर रहे हो ना। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ऑप्शंस, दे यूज फंक्शंस। ये फंक्शंस है सारे, जैसे कि अभी ये प्रोमोट हेडर ना, तो टेबल डॉट प्रोमोट हेडर ये फंक्शन है एम कोडिंग का, राइट? वी आर नॉट गोइंग टू लर्न द एम कोड. It is not necessary to learn the M code because whatever the options we are having, we are pretty much okay with that options. हमें जितना needed है ये option से हम कर पाते। तो in rare cases you wanted to do some input to the M code, but वो भी आपको ऑनलाइन वगैरह मिल जाता है, उसका हेल्प इतना क्रिटिकल नहीं होता वो, ठीक है? सो मैंने सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशंस किया, मैंने मंथ का नंबर यहाँ पे ऐड कर लिया एंड मैंने उसको रीनेम भी कर लिया। नाउ आई वांटेड टू ऐड वन मोर कॉलम विच गिव्स मी मंथ नेम।
मुझे मंथ का नेम चाहिए, ये फर्स्ट क्या है, जनवरी है या दिसंबर है, वट एवर आई वॉन्टेड टू नो. सो अगेन आई वॉन्टेड टू कैप्चर द मंथ नेम. सो मुझे इस टाइम पे मंथ नंबर का कॉलम सेलेक्ट करना चाहिए या डेट का सेलेक्ट करना चाहिए, राइट? बिकॉज मंथ नेम इंफॉर्मेशन डेट में है, नॉट ऑन दिस मंथ नंबर कॉलम. इसमें तो बस एक होल नंबर है 1 2 3 4. इट डजंट हैविंग एनी डेट इंफॉर्मेशन, राइट? इसने तो बस ये जो 1 नंबर है ये उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया इस डेट के कॉलम के वैल्यू के अंदर से. तो एक्चुअली डेट इंफॉर्मेशंस, ईयर इंफॉर्मेशंस, डे इंफॉर्मेशंस एंड मंथ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इनसाइड दिस डेट. सो मुझे डेट का कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा अगेन, एंड देन अगेन गो टू द ऐड कॉलम सेक्शंस. दिस टाइम in the drop down from the month I am selecting name of a month, so it gives me a name of a month. Pretty much clear, right? Pretty much easy, clear options है. आप आसानी से इसमें से ऑप्शंस को चूज करके कॉलम्स बना सकते हो. बट क्राइटेरिया क्या है, आपको डेट का कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन यू कैन एबल टू ऐड द कॉलम्स. जैसे मैंने मंथ नंबर ऐड किया, मंथ नेम ऐड किया, सिमिलरली मैं ईयर ऐड करना चाहता हूँ अभी. सो सेम वे आई एम सेलेक्टिंग द डेट कॉलम, अगेन गो टू द ड्रॉप डाउन फॉर दिस डेट. इन द ईयर सेक्शंस आई एम गोइंग टू ऐड द ईयर. सो दिस गिव्स मी अ ईयर. मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस को यूज कर रहा हूँ, लेकिन ड्रॉप डाउन हैविंग सम मोर ऑप्शंस. या आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ट्राई आउट करने हैं सारे ऑप्शंस कि स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या आउटपुट देता है, एंड ऑफ द ईयर क्या आउटपुट देता है. बिकॉज sometimes it is not required frequently, it is required very rarely. बट जब तक आप उसको ट्राई आउट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से फंक्शन से क्या आउटपुट निकलता है, करेक्ट? सो हमने मंथ के अंदर से कौन से ऑप्शंस यूज किए, वी यूज दिस मंथ एंड नेम ऑफ अ मंथ. सो स्टिल 3 आर पेंडिंग, यू चेक दिस. ईयर से हमने ईयर को चेक किया, 2 आर पेंडिंग. Also I wanted to add a quarter column, quarter number. So I can say this is my date. Go to the date sections, quarter, quarter of year. So it gives me quarters. हमारे पास कितने quarters होते हैं ईयर में? We have 4 quarters, right? 3 month का एक quarter होता है, January to March, then April to May and so on. So January to March ये मुझे फर्स्ट नंबर देगा, अप्रैल टू मे मुझे ये सेकंड नंबर देगा. सो दिस इज हाउ द क्वार्टर्स आर कैलकुलेटेड. बट इन रियल प्रैक्टिस क्वार्टर्स हम कैसे लिखते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, सम काइंड फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि दिस इज द क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, राइट? सो मैंने क्वार्टर का नंबर तो ऐड कर लिया, बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ऐड अ क्वार्टर लाइक अ Q1, Q2, Q3. सम पार्ट Q इज मिसिंग ओवर हियर. सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी आर ऑल्सो हैविंग सम ऑप्शंस, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल. सो मैं अभी क्या करूँगा, अभी मैं डेट का कॉलम नहीं सेलेक्ट करूँगा, अभी हम सेलेक्टिंग दिस क्वार्टर 1, क्योंकि मुझे इसी पर्टिकुलर वैल्यू के पहले क्यू लगाना है, करेक्ट? सो मैं क्वार्टर को सेलेक्ट करूँगा नाउ, एंड आई जस्ट चूजिंग अ कॉलम फ्रॉम माई सेलेक्शंस. तो जब आप कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल से क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको पावर बीआई एक ऑप्शन यूज़ करता है कि आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे टाइप करो कि आपको कैसे आउटपुट चाहिए. सो मैं यहाँ पे पुट करूँगा, लेट्स से मैं यहाँ पे ऐसे पुट किया, लेट्स से Q1, ठीक है? तो मैं सेकेंड रो को गया, तो इसने थोड़ा सा अपने से आपने इस पर्टिकुलर को उसको एग्जाम्पल दिया कि ये जो वैल्यू है 1, इसके आगे मुझे क्यू चाहिए और ऐसे चाहिए. आपने एक एग्जांपल दिया इसको कि मुझे ऐसे आउटपुट चाहिए, तो इसने सिमिलर वे से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे चेक कर सकते हो आप कि 2 के लिए उसने क्या दिया है, Q2 दिया है. सो आपने जो एग्जांपल दिया है वो परफेक्टली काम कर रहा है शायद. आप अगेन चेक कर सकते हो थोड़ा स्क्रॉल करके, Q3 के लिए भी वर्क हो रहा है एंड Q4 के लिए भी वर्क हो रहा है, राइट? फॉर द 4th मंथ, फॉर द 4th क्वार्टर इट गिव्स यू. अच्छा, ये हमने, ओके, नाउ इट इज फाइन, राइट? सो Q1 एंड Q2 के लिए मुझे ऑप्शंस, या मेरा जो एग्जांपल है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है. अगर वर्क नहीं कर रहा है तो आपका एग्जांपल आप नेक्स्ट उसको नेक्स्ट लाइन को अगेन एग्जांपल दे दो,
या जहाँ पे आप उसको गलत दिख रहा है, लेट से यहाँ पे अगर गलत होता, लेट से यहाँ पे 1 होता, स्टिल इट इज गिविंग यू Q2, तो इस पर्टिकुलर लाइन को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो आपका कि ये 1 नहीं है, ये 2 तुम काउंट करो, ऐसे इस केस में 2 काउंट करो। तो ऐसा ही आप एक बार चेक कर लेना एंड यू सिंपली क्लिक ऑन द ओके, you see you got in the new column. How we created this? You use this options column from example. Okay, so I don't want this as a merge, मैं इसको नाम दे रहा हूँ quarter name, whatever the transformations I'm doing, I'm saving these transformations or it will be automatically save in a applied step sections. Okay, quarter ना add कर दिया हमने. Let's also I wanted some more column like start of the month and start of the week. Okay, so let's add those also. Date पे गया मैं, again I go to this month, I want the start of the month. अभी स्टार्ट ऑफ द मंथ का जो ऑप्शन है, ये आपको वैल्यू क्या दिया है उसने, 1 जनवरी 2015. ये कब तक देगा? 31 जनवरी 2015 तक यही वैल्यू देगा सेम, बिकॉज दिस इज द योर स्टार्ट ऑफ द मंथ. दैट्स वाई इट इज गिविंग सेम वैल्यू टिल जनवरी. फेब्रुवरी के लिए वो फेब्रुवरी की 1 तारीख देगा. स्टार्ट ऑफ द मंथ समझ रहे हो, मंथ की 1 तारीख. तो उस मंथ होल मंथ, ये जो मेरे डेट्स की वैल्यूज है ना, ये डेट्स की वैल्यू कैसी है, इसमें सारे 1 से लेके 30 तक 31 तक वैल्यूज है. जनवरी मंथ के 31 डेज की वैल्यूज है. तो ऑल 31 डेज जो जनवरी के रहेंगे उनका स्टार्ट ऑफ द मंथ क्या रहेगा, 1 जनवरी रहेगा. सो दिस इज व्हाट दिस स्टार्ट ऑफ द मंथ गिव्स यू. ओके, सो that is enough, those transformation for the date. Remaining transformations you can try out. डे के लिए आप ट्राई कर सकते हो. लेट्स से नेम ऑफ अ डे, वो भी एक ले लेते हैं. लेट्स से आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस नेम ऑफ अ डे. इट गिव्स मी whatever the name for that is, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, so we did this transformations. Now if you wanted to see the M query for this particular code, आपने whatever the transformations किया, इसका अगर आपको query देखना है, so I'll go to the home sections and I'm having this options advanced editor. If I click on this advanced editor, whatever transformations आपने किए हैं, ये M query का कोड यहाँ पे वो उसने जनरेट करके दिया आपको, राइट. ये ऑटो जनरेटेड कोड है. आप इस कोड को कॉपी कर सकते हो और इस कोड को आपने नेक्स्ट एक ब्लैंक क्यूरी में अगर पेस्ट कर लिया, वी विल गोइंग टू सी टुमारो फॉर दिस. बट इस कोड को आप यूज़ करके नए टेबल भी बना सकते हो, डुप्लीकेट टेबल्स. ओके, या समटाइम्स यू नीड टू चेंज समथिंग इन द एम क्यूरी. यहाँ पे आपको सोर्स में कुछ चेंजेस करने हैं. सो काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशंस और काइंड ऑफ अ यूज फॉर दिस एडवांस एडिटर इज, आप इस कोड में चेंजेस करके आपके टेबल में भी चेंजेस इंप्लीमेंट कर सकते हो उसके. ओके, ये कहाँ से ओपन हुआ, मैं होम में गया एंड आई क्लिक ऑन दिस एडवांस एडिटर ऑप्शन. तो एम क्यूरी का जो स्क्रिप्ट है इस टेबल को जनरेट करने के लिए बना हुआ, वट एवर द ट्रांसफॉर्मेशंस यू डिड, वो स्टेप्स यहाँ पे वो कैप्चर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एम कोड. ठीक है, नाउ मेरा ट्रांसफॉर्मेशंस कंप्लीट हुआ. मुझे नाउ लोड दिस डेटा इनटू द पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन. मैं डायरेक्टली क्लोज तो नहीं कर सकता इसको, क्लोज किया तो ये जो सेव नहीं होगा. तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, देखो, क्लोज एंड अप्लाई का. इफ आई ड्रॉप डाउन दिस, मेरे पास 3 ऑप्शन है. फर्स्ट इन इज क्लोज एंड अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज. सो ये जो अप्लाई ऑप्शन है, इसको अगर क्लिक करता हूँ तो पावर क्यूरी का विंडो जो है वो क्लोज नहीं होगा, लेकिन आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगा. लेकिन पावर क्यूरी एडिटर का विंडो क्लोज नहीं होगा. अगर क्लोज कर दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन सेव नहीं होगा, पावर क्यूरी एडिटर का विंडो क्लोज हो जाएगा. सो इसलिए वी ऑलवेज प्रेफर क्लोज एंड अप्लाई. सो वी क्लिक ऑन क्लोज एंड अप्लाई. पावर क्यूरी एडिटर का विंडो क्लोज हुआ एंड वॉट एवर द ट्रांसफॉर्मेशंस यू डिड, it load these transformations or newly columns into the Power BI desktop application. Now in table view you can able to see all the columns that you created in Power Query. ये जो कॉलम है, ये कॉलम सिर्फ Power BI डेस्कटॉप में है. अभी एक्चुअली सोर्स फाइल में एक ही कॉलम है डेट का.
अभी भी डेट का एक ही कॉलम वहाँ पे है। ये जो बाकी के कॉलम्स आपने कहाँ पे बनाए हैं, आपने पावर क्यूरी में बनाए हैं ये ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट, फॉर योर एनालिसिस, फॉर योर पर्पस। तो डेटा सोर्स में ये चेंजेस नहीं हो रहे। ये सारे चेंजेस वट एवर यू क्रिएट अ कॉपी ऑफ अ डेटा इन पावर क्यूरी और इन पावर बाई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, उस कॉपी डेटा में ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। सो डेटा सोर्स अफेक्ट नहीं हो रहा है इस केस में, करेक्ट। So if I go to this report view again, you can see in this, you see this data pane over here. When I click on this build options, data pane open हुआ, and data pane के अंदर मुझे अभी टेबल का नाम दिखाई दे रहा है. If I expand it, whatever the columns I'm creating, those columns also showcasing me over here. So based upon the column, let's say यहाँ पे डेट का कॉलम है, तो इसके आगे देखो एक कैलेंडर जैसा सिंबल आया, इसका मतलब दिस पर्टिकुलर कॉलम इज अ डेट कॉलम, इसमें डेट वैल्यूज है, डे नेम, मंथ नेम, ये टेक्स्ट वैल्यूज है, टेक्स्ट डेटा टाइप वाले कॉलम है, तो इसके आगे कुछ आपको दिखाई नहीं देगा कुछ ऑप्शंस, ये प्लेन टेक्स्ट कॉलम है। लेकिन मंथ नंबर का कॉलम एक होल नंबर है, तो यहाँ पे देखो एक सिंबल दिख रहा है आपको ऐसे। सो आप यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा कॉलम क्या काइंड ऑफ अ डेटा होल्ड कर रहा है, राइट। अगेन यू सी द स्टार्ट ऑफ द मंथ, ये भी एक डेट का कॉलम है, तो यहाँ पे भी एक कैलेंडर का सिंबल दिखाई देगा। सो वट एवर न्यूमेरिक कॉलम आर देयर, यू सी दिस काइंड ऑफ अ सिंबल, एंड डेट कॉलम के लिए आपको ऐसा दिखेगा। अगेन यू व्हेन यू क्रिएटेड अ कैलकुलेटेड कॉलम्स इन यूजिंग डैक्स, तो उसके लिए अलग सिंबल्स आएंगे, मेजर्स के लिए अलग सिंबल्स आएंगे। वी आर गोइंग टू सी दिस कि कैसे वो दिखते हैं, बट अभी के लिए फॉर द डेट, न्यूमेरिकल एंड टेक्स्ट कॉलम के लिए आपको काइंड ऑफ ऐसा व्यू दिखेगा, ठीक है। नाउ ट्राई टू, अभी मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस किया, डेटा को लोड किया, अभी मुझे काम अभी रोकना है, आई जस्ट वांटेड टू कंटिन्यू इट फ्रॉम टुमारो इट्स, लेकिन मैंने जो प्रोग्रेस किया हुआ है इसको मुझे सेव करना है, राइट। सो इसके लिए मैं सिंपली कंट्रोल एस करूँगा, कंट्रोल सेव, या आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। ये आपको फाइल का कुछ नाम देगा, लेट्स से मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ कि DA3 है ना आपका, 2 DA3 मॉर्निंग, जैसे मैंने इसको कुछ फाइल का नाम दिया। पावर BI की फाइल जो है वो .pbix फॉर्मेट में सेव होती है। पावर BI डेस्कटॉप की फाइल या पावर BI में जो फाइल्स होती है नॉर्मली वो सेव होती है .pbix एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। मैं लोकेशन दे रहा हूँ इसको, लेट्स से go to the more options, just saving it in the same folder, इसी फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ इसको। पावर BI .pbx सेव, देखो यहाँ पे नाम आ गया। अगेन आई जस्ट क्लिक ऑन द सेव वन मोर टाइम एंड जस्ट क्लोज इट। मैंने क्लोज कर दिया फाइल को। इफ आई गो टू द दिस पर्टिकुलर फोल्डर ना, go to the folder, I double click on this particular file DA3 morning, it will be again directly opening Power BI desktop application and that particular file. So आप आपका काम वहाँ से वापस से कंटिन्यू कर सकते हो जहाँ जहाँ तक आपने सेव किया था उसको। हमने टेबल लोड किया था, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस किए थे, एंड वी सेव दिस फाइल। Okay, you see this data calendar tables and our transformations are in this file. So again you continue with this file for your next task. पता चला कैसे सेव करना है फाइल को। Okay, you try it out this today for the next table transformations. Can we meet tomorrow? Tomorrow available? ऑनलाइन स्टूडेंट कल अवेलेबल हो क्या? नो सर, कल इंटरव्यू है, वॉक इन ड्राइव है।
कितने बजे इंटरव्यूज है? 9:45 से स्टार्ट। और कब तक चलने वाले हैं वो? कौन से इंटरव्यूज मतलब क्या? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, बट किस चीज़ का इंटरव्यू है? हाँ लेकिन अच्छा, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है क्या? वॉकिंग ड्राई? अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस के लिए है क्या? अच्छा, एनएमडी कंडक्ट करने वाला है क्या? तो तुम लोगों का क्या काम है फिर? तुम लोग थोड़ी ना इंटरव्यू के लिए जा रहे हो क्या? अगर जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन नहीं जा रहे हो तो वी कैन कंडक्ट द क्लास ना। सर विल गो। आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए? हाँ। Yes, sir. ओके। अच्छा, मुझे बात बताओ, ये आपके जो ये ऑनलाइन स्टूडेंट जो सारे हैं, ये ऑल आर फ्रॉम DA 3 और सम आर फ्रॉम DA 2 ऑल्सो? ऑनलाइन So स्टूडेंट आपकी DA3, DA 3 है या DA 2 है? DA3. DA 3 ना? जी सर। ओके, जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम जस्ट कैप्चरिंग द अटेंडेंस। आप सब लोग एक बार आपका दे दो ना अटेंडेंस। कैसे दोगे? वो DA 3 के ग्रुप में देखो ना, मेरा नंबर है, वहाँ से कर लेना। हाँ मतलब आप अभी नाम ले लो और वहीं पे मैसेज डाल दो ग्रुप पे। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ डाउट है लेक्चर्स में? अभी का आज का जो लेक्चर्स हुआ कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? सबको समझ में आ रहा है जो पढ़ रहे हैं वो? आपका अभी कंप्लीशन क्या क्या हुआ है, मतलब एक्सेल वगैरह हुआ है क्या? SQL भी हुआ है? SQL किसने लिया? माई SQL लिया है क्या? पावर BI नहीं पढ़ा है क्या उसने? सर मैं नाइट बैच करती थी तो प्रज्योत सर ने पढ़ाया था, बट उसका प्रदीप? पावर क्वेरी और प्रज्योत। अच्छा, प्रज्योत ना? प्रज्योत सर ने। प्रदीप सर? प्रज्योत सर सर। अच्छा, प्रज्योत। अच्छा।
है मैं आज का जो रिकॉर्डिंग है ना, ये रिकॉर्डिंग चैट बॉक्स में सबका सब लोग नाम डालेंगे तो भी आपको तो एक एक करना पड़ेगा ना। नहीं, सब जो अटेंड कर रहे हैं वही नाम डाल देंगे, उसका